Hello dear students, today we are going to start our next chapter which is named as electricity. So we all know the basic requirements of electricity in our day by day life. There are so many more operations which can't possible in our day life without electricity. Okay, so what is electricity and what are the types of electricity? So there are basically two types of electricity. First one is static electricity. And the another one is current electricity. Static and current electricity. Both of these are, we know, the key point of electricity. Key point of electricity, which is charge. Okay, the key point of electricity is charge. So electricity is defined. Electricity is bifurcated basically into two parts. First one is static electricity and another one is current electricity. Okay, so the key point of electricity is charge. So electricity is defined as it is defined as the moving of a charged particle in a unit direction. Moving of charged particle in unit direction. Okay, so अगर चार्ज पार्टिकल आपका मूविंग है तो वो कौन सा होगा बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज एट रेस्ट, चार्ज नॉट मूविंग, which is known as static electricity, and whereas charge is moving in a direction. Okay, that is known as current electricity. Okay, so electricity, where we are going to use electricity in power machines or day by day life. So the key point of electricity is charge. So now we have to discuss about charge. In our syllabus we will discuss about only current electricity, which means whenever a charged particle is moving in a particular direction, then it's considered under as current electricity. So the key point of electricity is known as charge. So we will discuss about charge. Okay, the unit of charge is coulomb. Unit of charge is coulomb and denoted by capital C. Okay. Nature of charges. There are two natures of charges, positive or negative. Positive or negative. Neutral कोई charge नहीं होता बेटा, तो nature of charge is positive or negative. Okay. The smallest quantity of charge. Which is electron. Smallest quantity of charge is electron, and charge of an electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, so the charge of an electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and we know the nature of charge of electron is negative. In previous class, at 9th, that you have seen or you have studied about atom. Atom is made up of particles, nucleons, or nucleons. It means nucleons means neutron and proton, which both are in nucleus of an atom, and the remaining particles are electrons, which are moving in orbitals. Okay, orbits or orbitals. Okay, so the charge, unit of charge is coulomb. Nature of charge, there are two types of charges, positive as well as negative. Smallest quantity of charge, which is electron, and charge of an electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay. Okay, this is the basic about
charge. Okay, so if I am going to ask you that the number of electrons in 1 coulomb, number of electrons, the very first question are basic questions. You have to calculate number of electrons in any charge which is given to you. So number of electrons in 1 coulomb, so you have to calculate the number of electrons in 1 coulomb. We know 1 electron equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So 1 coulomb equals to 1 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. If we are going to solve it, then we will get it 6.25 into 10 raised to power 18. 6.25 into 10 raised to power 18, which is an integer. क्यों? क्योंकि चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा, सॉरी चार्ज का जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है. तो जो सब आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऑलवेज वो क्या होंगे? आपके इंटीजर होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इंटीजर. हाँ, चार्ज में भी फ्रैक्शन हो सकता है 5.25 कूलम, 3.2 कूलम, -2 कूलम, है ना. तो लेकिन आपका जो होगा वो ये होगा. नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिसिटी में वो है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. We all know. अच्छा, okay. What do you mean by current? Current, it means continuous flow. Current, it means continuous flow. If like as current affairs, current news, water current, wind current, it means current, it means continuous flow. Current, it means continuous flow. Okay, so current, it means continuous flow, but electric current, it means continuous flow है किसका? Charge का. So continuous flow of charge. Continuous flow of charge. Continuous flow of charge. But if you have seen an atom, न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बट बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. अब सपोज कि आपको चार्ज पार्टिकल लाना है, तो चार्ज पार्टिकल उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना बहुत टिपिकल है, बट कि हम जो इलेक्ट्रॉन है उससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? चार्ज हो जाएगा. ये एटम कैसा हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा ना. सो बेसिकली जो मूवमेंट होता है चार्ज में, तो वो कौन होते हैं? चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं. सो continuous flow of electron is known as electric current. Continuous flow of electron is known as electric current, or in technical words we can say, in another words, the electric current is defined as I is defined as dq by dt. I is defined as dq by dt. It means the time rate flow of charge. Q it stands here for charge. चार्ज को हम जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे बेटा? Q से डिनोट करेंगे. किससे करेंगे? Q से. चार्ज को Q से डिनोट किया गया. सो I is defined as dq by dt, the time rate flow of charge. Time rate flow of charge. The time rate flow of charge is known as electric current. The time rate flow of charge is known as electric current. But this one current is instantaneous current. But whereas in our syllabus we can write down it in another terms like Q by T. I equals to Q by T. It means I here average current. I here average current. Average current. So average electric current Q upon T. Q are charge and T time. Q is charge and T time. Okay. So I equals to Q by T. Here Q which is coulomb. Q is coulomb and T second standard. बेटा आपके जो फिजिक्स में आप थोड़े 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो आप पढ़ोगे कि फंडामेंटल यूनिट्स. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें टाइम को इंटरनेशनली ऐसा यूनिट में जो टाइम है उसका फंडामेंटल यूनिट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो सेकंड है. और जो चार Q जो है वो उसको किसमें लिखते हैं? हम कूलम में लिखते हैं, है ना. Q का यूनिट होता है कूलम. सो I जो आता है बेटा वो आएगा कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड जो I जो होता है उसको बोलते हैं एम्पियर. कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं. Okay, so the unit of electric current is coulomb per second or ampere, but
In most of cases we will use ampere. We will use ampere. Okay. साइंटिस्ट था उसी के नाम पे इसको डिनोट किया जाता है. तो I क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. So I को डिफाइन क्या किया कि the time rate flow of charge, the time rate flow of charge per unit, the time rate flow of charge. Okay. See, if I ask you define 1 ampere. Define 1 ampere. See, define 1 एम्पियर. और एम्पियर को बड़ा कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है. सो आई जो है उसका मेजर किससे करेंगे हम? कूलम पर सेकंड से, जिसको एम्पियर बोला गया. एम्पियर और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया गया है एम्पियर. ओके. सो 1 एम्पियर इट मींस I इक्वल्स टू Q by T. I इक्वल्स टू Q by T. 1 एम्पियर इट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका कोई वायर है. सपोज ये आपका कोई वायर है, उससे T इक्वल टू 1 सेकंड में अगर Q इक्वल टू 1 कूलम फ्लो होता है, ठीक है. अगर I इक्वल्स टू Q by T इट मींस I इक्वल्स टू क्या है? 1 कूलम बाय 1 सेकंड. और ये क्या बन जाएगा? 1 कूलम पर सेकंड क्या बन जाएगा? I इक्वल्स टू 1 एम्पियर. ओके. सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज the if in a given wire 1 coulomb charge flow in a per second. The flow of 1 coulomb charge per second. If the flow of 1 coulomb charge is per second in any wire, then the current will be 1 ampere. Okay. So current को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक वायर से 1 सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो कितना होगा? 1 एम्पियर करंट होगा. कितना होगा? 1 एम्पियर करंट होगा. अच्छा, 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम, और 1 कूलम का मतलब कितना हो गया? 1 कूलम इट मींस 6.25 into 10 to the power 18 electrons. 1 कूलम इट मींस 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगी. किससे? एक वायर से. अच्छा, करंट जो फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा या चार्ज जो फ्लो होगा, बेटा वो चार्ज किससे फ्लो होता है? क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है ना. कि हम किसी वायर को टच करते हैं और अगर उसके ऊपर इंसुलेशन लगा है तो क्या हमें शॉक लगेगा? नहीं. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंसुलेशन है. इट मींस वायर के अंदर जो है मेटल है, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, बट आपका जो इंसुलेशन है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा. सो जो मटेरियल जो है उनको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स. और सेमीकंडक्टर्स अपन इतना ज्यादा नहीं देखेंगे. कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर इट मींस which always conducts electricity, which always conducts electricity, like as iron, copper, silver, aluminum. So many, all metals are good conductor of electricity. Generally all metals are good conductor of both heat and electricity. Insulators like as plastic, wood, है ना. So these materials never conduct electricity. Those are known as insulators. Whereas semiconductor materials which have some properties like conductors and some like insulators. So these are the common. These semiconductors have some properties of conductors and some properties of insulators. So we can use semiconductor materials like as conductor or insulator according to our requirement. Okay. So materials are bifurcated in 3 parts on the basis of electric conductivity, conductor, insulator and सेमीकंडक्टर्स. ओके. सो हम जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे या यूज करेंगे, जनरली वो किसकी बात करेंगे? कंडक्टर्स की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? कंडक्टर्स की बात करेंगे. ओके. सी, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है, इट मींस उसमें करंट फ्लो होना चाहिए. सपोज कर कि ये आपका कोई कंडक्टिंग रॉड है. ये क्या है आपका? कंडक्टिंग रॉड. कंडक्टिंग रॉड, सपोज आयरन. ओके. आपका ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टर है, मेटल है. मेटल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल है, मेटल इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना. कंडक्टर इट मींस मेटल और मेटल इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन. अच्छा, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है. सपोज करके ये वाला इलेक्ट्रॉन
ये फ्री है तो ये मर्जी के अकॉर्डिंग मुताबिक इट डिपेंड्स इटसेल्फ इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग टू मूव। ओके, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। सी फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इफ वी आर गोइंग टू टच दिस पर्टिकुलर वायर then we don't feel any shock or electric current. Why we don't feel? See here, flow of electrons हाँ है, it means current किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट मींस flow of electron, and we have seen in any metal or conductor there are so many more free electrons. Okay, so they will move in random directions, in a random direction. But electric current क्या है यहाँ? Zero. Electric current zero. Why zero? If you can experience this one, if I am going, suppose this one is an electric, suppose this is an conductor metal rod. If I am going to touch this one, then it doesn't shock me. Okay, it means क्या हुआ कि मैंने इसको टच किया तो मुझे कोई शॉक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है। या इलेक्ट्रॉन फ्लो है, बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कैसा है कि करंट जो है वो जीरो है। करंट कितना है बेटा? जीरो। क्यों जीरो है? तो आप बोलोगे ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मींस क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका रैंडम मोशन हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है तो नेट फ्लो जीरो, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है तो नेट फ्लो जीरो। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा कहीं इधर जा रहा होगा ना। सो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज zero. Net flow of electron in particular direction is zero. So we can say net current also zero. Okay. See, in a free wire there are presence of n number of free electrons which are in random motion. So due to that random motion of free electrons, the net current in that particular rod or wire is zero. Okay. So what will happen if we are going to apply a potential difference across the terminals of wire? See. Suppose for an example I am going to consider a bulb, electric bulb, suppose. Okay, this one is like this is switch. Okay, this is battery और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये वाला बैटरी पोर्शन है। कौन है बेटा? ये आपका बल्ब है ना, ये स्विच है। अगर मान लो कि मेरा स्विच ओपन है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कंडक्टर अच्छा है, मैंने इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर को थोड़ा मैंने जूम आउट किया तो ऐसा है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट वो कैसी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। ओके, मतलब नेट फ्लो कितना? जीरो। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इफ आई एम गोइंग टू स्विच को अगर मैंने ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो किया, इट मींस क्या हुआ? मैंने बैटरी अप्लाई किया तो कुछ तो हुआ कि जिसकी वजह से मैंने बैटरी अगर कंडक्टर के अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो इट मींस उसका जो फ्लो था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो रैंडम ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया। इट मींस इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of any conductor, then the motion of electrons will be in a particular direction. See, suppose ये आपका कंडक्टर है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ। ये आपका कंडक्टर है, सपोज इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है,
ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। पहले क्या हो रहा था, अगर मैंने पोटेंशियल नहीं लगाया, मतलब मैंने बैटरी नहीं जोड़ा था, तो ये क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे इन absence of any external potential, in absence of any external potential, और सोर्स भी बोल सकता हूं मैं कि ये सोर्स नहीं था तो इनका रैंडम मोशन हो रहा था। अब ये सोर्स हुआ, अब ये क्या हुआ, सोर्स हुआ। अच्छा सोर्स हुआ तो इस सोर्स की वजह से बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस पे एक फील्ड आता है, और फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन का होगा। या थोड़ा सिंपल वे में ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव है, तो उसको क्या चाहिए, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, बैटरी का ये वाला। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में इसको यहाँ आना है, तो इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इफ a potential difference applied across the terminals of a conductor wire, then the free electrons in conductor feels an force in particular direction which is known as EMF, electromotive force। क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, जब मैंने इसको पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इनकी चाहत जो है वो कौन है, पॉजिटिव टर्मिनल। सी दिस इज एज पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी का अगर रिप्रेजेंटेशन जो देखोगे आप बैटरी का, तो ये वाला ऐसा होता है, ये बाय डिफॉल्ट जो बड़ा वाला तो पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन को चाहत क्या है कि उसको पॉजिटिव मिले, और पॉजिटिव मिले, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव, तो सब के सब इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हुआ, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। कौन हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हुए, तो करंट फ्लो क्या होगा, जो करंट फ्लो होता है वो ऐसा होता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्शन, व्हाट यू मीन बाय डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और हाउ यू विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So the direction of conventional current is according to this, the direction of electric current is always in the same direction of positive charge flow. The direction of current, see direction of electric current, direction of electric current always as direction of positive charge flow, the direction of conventional current is defined as the direction of conventional current is determined as the direction of positive charge flow, or we can say opposite to negative charge flow। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोले तो बेटा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। इट मींस पॉजिटिव चार्ज फ्लो के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी। अब जबकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हमारे पास पॉसिबल नहीं होते, तो रोल किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो। सी यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, उसको चाहत थी पॉजिटिव चार्ज की, इट मींस इलेक्ट्रॉन will attract to positive terminal. Okay, so it will try to reach at this terminal. Okay, so this one will the direction of flow of electron. So according to that direction of conventional current always opposite to the direction of flow of electron. So electrons का flow जो है ऐसा है, तो current क्या होगी बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। Okay, thank you.